ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ दैनिक टीवी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू। ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਕਰਮ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਬਣਨ ਤੱਕ? गिरधारी लाल बत्रा, मैं कैप्टन विक्रम बत्रा दा फादर। We, myself and my wife both were in education department in Himachal Pradesh, and God blessed us with twin sons after two daughters, and we named them as Love and Kush. But when we admitted them in school, so we changed the names, and that were the Vikram and Vishal. So the Captain Vishal Batra, Vikram Batra, sorry, he studied in the Central School, Palampur. He did his +2 from there, and then he graduated from DAV College, Chandigarh, in science. He was very brilliant, very outstanding, very extraordinary from the very beginning. He had a lot of leadership qualities. He was very humanitarian. He excelled in NCC as well as in sports as well as in studies. He excelled in NCC. He remained as the best cadet in North India twice. He represented the RD parade in '94 at Delhi. He did his C certificate. He was a friend of friends, very jolly, very lovely, respectful to elders, loving to children. He was very patriotic from the very beginning, from the very childhood, because he used to listen the stories of Shahid Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Subhash Chandra Bose, Chhatrapati Shivaji, Maharana Pratap. I used to tell these stories to him. So he targeted to join the army, take commission in the army, and he succeeded. Rest, what he did in the Kargil war, everybody knows it. He killed at least 7 persons, all alone. First, he captured 5140, where he killed 7 persons. It is a very high peak, about 7,000 to 18,000 feet. Then he volunteered himself for 4875. Though he was suffering with fever, having headache and chest pain, but since his soldiers wanted him as a commander, he volunteered himself for 4875. And at 4875 also, he fought with all the courage, without any fear for his life. He saved 2 persons there. First, he declined to his Subedar that Vikram himself will go out to save one of the junior. When Subedar was going out, Vikram himself jumped out of the bunker. He brought that wounded soldier, and he all alone fight there. मैम, अगला सवाल आपको है। जिस तरीके से विक्रम बत्रा ने पहले ग्रेजुएशन में साइंस में की और उसके बाद भारतीय फ़ौज में किस तरीके से वो एंटर करे, क्या स्टार्टिंग से कोई फैमिली में पहले था फ़ौज में? किस तरीके से उनको अट्रैक्शन हुई फ़ौज में जाने का, किस तरीके से सबब बना? ऐसा है कि विक्रम ने +2 जो है वो सेंट्रल स्कूल पालमपुर से किया है, तो वो आर्मी कैंप में ही है। तो आर्मी ऑफिसर्स के जो बच्चे थे वो उसके क्लास फेलो थे, और वो जब उनका एटमॉस्फेयर उसने देखा तो वो बहुत इम्प्रेस हो गया, और उसने ये टारगेट रखा कि मैं आर्मी में ही जाना चाहूँगा।
हालांकि उसको मर्चेंट नेवी के लिए ऑफ़र आया और उसमें सिलेक्ट भी हो गया। हमने उसकी बुकिंग जो थी वो मद्रास के लिए करवा दी, वो जाने वाला था। लेकिन सिर्फ़ 2 दिन पहले उसने कहा, मम्मा आपको पैसों की कितनी की ज़रूरत है? मैंने कहा हम दोनों ही बहुत अच्छा कमा लेते हैं, हमें कोई ज़रूरत पैसों की नहीं है। तो कहता डन। मैंने कहा क्या मतलब? कहता मैं नहीं जाऊँगा मर्चेंट नेवी में। मैंने शुरू से ही टारगेट रखा था कि मैं आर्मी में जाऊँगा, इसलिए मैंने आर्मी में ही जाना है। हमने कहा हमें बहुत खुशी है कि आर्मी में आप चले जाओ। तो फिर वो उसने चंडीगढ़ जब ग्रेजुएशन उसकी हो गई तो सीडीएस का उसने एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसने बड़े अच्छे नंबरों से सीडीएस क्लियर कर लिया। अभी जब कभी बात होती है, क्योंकि काफ़ी समय गुजर गया, तो जो माता पिता होते हैं उनके लिए तो कल की बात ही है एक तरह से। और अभी कैसा एहसास होता है, क्योंकि आप इवेंट्स में जाते हो, प्रॉपर वही विक्रम बत्रा का जिक्र होता है, तो कैसा लगता है आपको? देखिए, एक माँ-बाप के लिए एक जवान बच्चे का खो देना जो है वो बहुत ही असहनीय होता है। लेकिन साथ-साथ में ये जो दूसरा प्लस पॉइंट है वो ये है कि हमें दोनों को ही, हम उनके उसके माता-पिता हैं, बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, जो उसने इस देश के लिए, भारतीय सेना के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए किया, वो शायद ही कोई कर पाएगा। इसीलिए हमें उस पर बहुत प्राउड है और हमें ये भी प्राउड है कि हम उसके माँ-बाप हैं। उसके अलावा बात करें तो उनकी जो पूरी हिस्ट्री थी और पूरी लाइफ थी, उसमें बायोग्राफी में पिक्चर भी बन चुके, कई मूवीज़ भी बॉलीवुड में शूट हो चुकी है। उसको देख के कैसा लगता है? क्योंकि आप उनके माता-पिता हैं, आपको वो बात, हर एक बात बताते रहे होंगे, कैंप में भी, बेस कैंप में भी, जो वहाँ से होता। किस तरीके से वो रिलेट करती थी उनसे? ऐसे जब वो कारगिल युद्ध में था, तो सैटेलाइट के थ्रू उसके फ़ोन आते थे और हमें वो सारी सिचुएशन बताता था। लेकिन उसने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बताई जो कि उसको हर्ट कर सके, हमें हर्ट कर सके। तो वो यही कहता था कि मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पर बहुत मज़े में हैं हम। काफ़ी सालों के बाद फ़िल्म बनी, ये जो आजकल ही कयारा और शेरशाह बनी है, तो उसमें जितना भी रोल हुआ है, वो विक्रम बत्रा ने किया है, वो वास्तविक में वही सब कुछ सच है। और जो उसने बहादुरी के किस्से किए, वो उसमें दर्शाए गए हैं और उसको देख कर के भी इस जो यूथ है हमारा, उसको प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार से वो राष्ट्र की सेवा करें। अगर बात करें तो अब के जो अभी समय चल रहा है, जहाँ पर पंजाब और दूसरे जो राज्य हैं, लोग नशे में जूझ रहे हैं, नशा ख़त्म सरकारें जो नहीं कर पा रही, तो उस तरीके से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आपका जो बेटा था, वो किसी तरीके से भी मतलब लोगों के प्रेरणा का स्रोत बन रहा है एक तरफ से। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इसमें? ऐसा है, मेरा ये संदेश है कि ये जो नशा केंद्र चल पड़ा है, जितने भी ये यूथ है नशे में धुत रहते हैं, उनको प्रेरणा लेना चाहिए कि हमारे जो वीर बच्चे हुए हैं, उनकी वो प्रेरणा से नशा मुक्त हो करके देश की सेवा में जुट जाएं। तभी ये संभव हो सकेगा और तभी ये जो भारत है उन्नति के शिखर पे पहुंच सकेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद दैनिक सवेरा को अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम जनरल राज मेहता है। मेरी लगभग 39 इयर्स की फ़ौज में नौकरी है और रिटायरमेंट से करीब 2 महीने पहले मैं योल में था और मेरे को मालूम था कि पालमपुर में जहाँ मिस्टर एंड मिसेस बत्रा रहते हैं, पास ही थे और हम एक म्यूज़ियम खोलने वाले थे वहाँ पर। तो मैं मिस्टर एंड मिसेस बत्रा के घर में गया, एक बड़ी सी तस्वीर विक्रम बत्रा की लेकर, और इन्होंने जो इज़्ज़त दी वहाँ पर मेरे को, जानते हुए कि मैं किस काम से आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो आप रिकॉर्ड कर लें। ऑलराइट, इन्होंने चाय पानी पिलाया, फोटोग्राफ इज़्ज़त से ले ली, फिर विक्रम बत्रा के कमरे में ले गए और वो वर्दी दिखाई जो इसने मौत के टाइम पहनी हुई थी। उसके बाद जब हमारा म्यूज़ियम बना
तो मैंने इनके घर जाकर रिक्वेस्ट किया कि आप मेहरबानी करके आए और वो म्यूज़ियम इनॉग्रेट हो गया। वो योल में हेडक्वार्टर्स 9 कोर में म्यूज़ियम है। अब जहाँ तक इस बहादुर की मौत का सवाल है, जब इनका महावीर चक्र अनाउंस हो गया था, एक हाइट है जिसका नाम है 5140, ये मीटर्स में हाइट है, मतलब लगभग 18,000 फुट। कब्जा करने के बाद इनको इतला मिल गई थी आर्मी हेडक्वार्टर से कि आपको एमवीसी मिलेगा। जिस दिन ये हमला होना था उस दिन इनका टेम्परेचर लिया गया 104, बुखार था, मुंह सूजा हुआ था, शरीर टूट रहा था। किसी ने पूछा तुम क्यों जा रहे हो, तो इनका जवाब था बरखा दत्त को, जो उस वक्त रिकॉर्ड कर रही थी इस आवाज़ को, बोला ये दिल मांगे मोर। फिल्मी लाइन है तो क्या हुआ, इस बच्चे का खून उन बातों में भरा हुआ था। ऊपर चढ़ा और जब फायरिंग शुरू हो गई और लोगों की मौत या चोट चाट लगने लगी, तो इनके एक साथी ने बोला ऑफिसर ने कि सर मेरे को गोली लग गई। इसने उसको पीछे खींचा और एक जेसीओ साहब था जिनका साहब ने जिक्र किया कि सर मैं जाता हूँ, तो इन्होंने जेसीओ को बोला तू छड़ा है, मैं छड़ा हूँ, मतलब मेरी शादी नहीं हुई, तू हट, तू बाल बच्चे वाला है। और वो लड़का खड़ा हो गया और जो किसी और के नसीब में था अपनी छाती, अपने सिर, अपने शरीर पर ले लिया। विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र, मरणोपरांत। 5 persons he killed there all alone. 5 बंदों को उन्होंने अकेले ही हैंड टू हैंड फाइट में मारा। उसके बाद उनकी मौत हो गई। मेरा ये कहने का मतलब है इस तरीके की बहादुरी बहुत कम रिकॉर्ड की जाती है। हर एक परमवीर चक्र बराबर मानकर अगर हम चलें तो हम ये कहें कि इतने बड़े मुल्क में 1.4 बिलियन पीपल, खाली 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला है। उसमें से एक विक्रम बत्रा था। इसका भाई है जुड़वा भाई विशाल। विशाल अपने नाम के बराबर है। आज की तारीख में एक ऊंचे बैंक में जोनल मैनेजर है, बहुत बीबा है, बहुत अच्छा है। विक्रम की याद आती है, उन दोनों को देखकर माँ बाप की याद आती है। अगर आपने आज के हीरोज़ में किसी को टटोलना है, इन माँ और बाप, मदर और फादर को टटोलें। पढ़ाने वाले लोग थे, इन्होंने ज़िंदगी को, हिंदुस्तान को सबक सिखलाया है जो हमें सीखना चाहिए।